फ्रेंड, दिस इज दीपिका। वेलकम टू ज्ञान का तड़का। डिस्कस करते हैं बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। सक्सेस की दाल तभी पकेगी जब उसमें ज्ञान का तड़का लगेगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट क्राइटेरिया कैन बी यूज्ड to decide whether something is alive is movement. Life process basic functions performed by living organism to maintain their life on this earth are called life process. First nutrition, second respiration, third transport, fourth excretion, fifth control and coordination, sixth growth, seventh movement and eighth reproduction. वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स and utilization of nutrients is nutrition. Nutrients can be defined as a substance which an organism obtains from its surrounding and uses it as a source of energy or for biosynthesis of its body constituent like tissue and organs. For important nutrient present in our body, in our food, first carbohydrate, second fat, third protein and fourth is mineral salt. Nutrition is of two types. First, autotrophic nutrition. Second, heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which organism makes its own food from simpler inorganic material. And on the other hand, heterotrophic nutrition is that mode of nutrition in which organism cannot make its own food from simpler inorganic substance. Simpler inorganic substance कौन कौन से हैं? First CO2 and second is water in the surrounding with the help of sunlight. On the other hand, in heterotrophic nutrition, carbon dioxide and water is not required. Example, green plants are the autotroph and animal and human are the heterotroph. Autotrophs are those organisms which make our own food, and on the other hand heterotroph are those organisms which doesn't make own food. Nutrition is of again three types. First, saprotrophic nutrition, second parasitic nutrition and third is holozoic nutrition. ये तीनों न्यूट्रिशन हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ही पार्ट हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन obtain its food from dead organic matter of dead plants, dead animal and rotten bread. Example देख लेते हैं, fungi and bacteria. Second, parasitic derive its food from the body of another living organism without killing. Example, plasmodium, roundworm, cuscuta, leech and ticks. Third, holozoic nutrition. They take the complex food material into its body by the process of ingestion. Ingested food is digested and then absorbed into the body cell of organism. Example, animals में ह्यूमंस इंक्लूड है और अमीबा के अंदर भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देख लिया। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो अपना फूड किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट, जो प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उसे बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, conversion of light energy into chemical energy, splitting of water into H2 plus half O2 by light energy, reduction of CO2 by H2 to form carbohydrate like glucose by utilizing the chemical energy. केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। 6CO2 plus 6 water, presence of क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, C6H12O6 जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है प्लस O2। CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग के अंदर वापस छोड़ दी जाती हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है एक बार और देख लेते हैं। इसके अंदर 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, स्प्लिट होता है वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होती है कार्बोहाइड्रेट में। एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। फर्स्ट, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमें सराउंडिंग से मिलती है। ग्रीन लीव्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाती है। ये ग्लूकोज स्टोर फूड की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है और ऑक्सीजन सराउंडिंग में वापस छोड़ दी जाती है। ये जो फूड बना है ये फूड हमारा फिलोएम वेसल के थ्रू पूरे पार्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जबकि जो वाटर है इसका ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम वेसल के थ्रू।
जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का गैसेस एक्सचेंज है वो हमारे टाइनी पोर्स करते हैं जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं ऑफ द लीव्स। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीव्स। Mostly gases exchange through stomata but also occur through root, leaves and stem. स्टोमेटा का डायग्राम देख लेते हैं। स्टोमेटल पोर सराउंडिंग होते हैं गार्ड सेल से और गार्ड सेल पर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ प्लांट, हेल्प करता है एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो हमारा गार्ड सेल है वो किस तरीके से ओपन और क्लोज होते हैं वो देखते हैं। जब वाटर का इनटेक होता है या वाटर एंटर करता है गार्ड सेल में तब वो स्वेल हो जाते हैं और हमारा स्टोमेटा ओपन हो जाता है। जब वाटर बाहर निकल जाता है तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाते हैं और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है उनका ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है, किस प्रोसेस के थ्रू होता है वो देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस बाय द डिफ्यूजन। Diffusion is a process in which solute molecules, solute particle transport from higher concentration to lower concentration of solution की तरफ मूव करते हैं, जबकि ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सोलवेंट मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से CO2 और वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चंस हैं। नेम वन ऑर्गेनिज्म ईच हैविंग सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एग्जाम्पल क्या क्या है वो बताना है हमें। फर्स्ट सैप्रोफिटिक, सैप्रोफाइटिक का एग्जाम्पल है फंगी, पैरासिटिक का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम एंड होलोजोइक का एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स और अमीबा भी है। Move to the second question. Which substance is used to remove chlorophyll from a green leaf during photosynthesis experiment is alcohol. Third, apart from CO2 and water, name 4 other raw material which are needed by the plant are the nitrogen, phosphorus, iron and magnesium. Fourth question. Next, an animal. Name an animal whose process of obtaining food is called phagocytosis is amoeba. Fifth question, arrange the following process involved in nutrition in animal in correct order. जो हमारा अमीबा होता है उसके अंदर होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और उसके अंदर 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। और जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, तो सेम 5 प्रोसेस ही इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, हाउ डज अमीबा एनगल्फ द फूड पार्टिकल। जो अमीबा है वो अपने फूड पार्टिकल को किस तरीके से एनगल्फ करता है, लेता है। आंसर है विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड शूडोपोडिया। तो जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसके थ्रू अपने फूड पार्टिकल को एनगल्फ करता है जिसे हम शूडोपोडिया बोलते हैं। नेक्स्ट, what substance enter into food vacuole in amoeba to break down the food is digestive enzyme। ये वो एंजाइम है जो अमीबा के अंदर जो फूड गया है उसको ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ यूनिसेलुलर एनिमल विच यूजेस cilia to move food particle into its mouth is paramecium. Next, iodine turns blue black on reacting with dash। आंसर है starch। नेक्स्ट, नेम द फूड विच गेट्स स्टोर्ड इन प्लांट लीव्स। हमें पता है स्टोर फॉर्म में कौन क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब जो नाइट्रोजन है वो उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो प्लांट्स है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, उसे यूजेबल फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, उसके बाद ही जो हमारे प्लांट्स है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते हैं। Plant takes nitrogen from soil in the form of inorganic salt called nitrate or in the form of organic compound which produced by bacteria from atmospheric nitrogen। नेक्स्ट है कुछ अमीबा के बारे में बातें हैं। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, टेक्स इट्स फूड बाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शन which fuse over food particle forming food vacuole। Complex substance break into simpler one and diffuse into the cytoplasm। एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। फर्स्ट डायग्राम जो है उसके अंदर देखिए इंजेक्शन हो रहा है। इंजेक्शन में क्या होता है, सिर्फ इनटेक ऑफ
फूड होता है। तो स्यूडोपोडिया कवर करेगा फूड पार्टिकल को, सेकंड के अंदर पूरा कवर हो जाएगा और वहाँ पे फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। थर्ड स्टेप में एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्ब करेगा और ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। जब ग्रो करना स्टार्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं एसिमिलेशन। नेक्स्ट, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल दिया जाता है और उस प्रोसेस को बोला जाता है इजेशन। जो अमीबा है उसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक। आई होप आपको ये सेशन वीडियो पसंद आया होगा। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।